Hi everyone, welcome to NDTV. I'm Arun Singh and with me is Team Jogi, Sara Ra Ra Ra. It's quite a tongue twister and with me are the very talented two Neha Sharma and Nawazuddin Siddiqui. It's a Jugadu and फाड़ू. why do we say that? यार you have to ask the writers. उन्होंने बस ऐसी फिल्म बनाई है where there's one person who's a जुगाड़ू and one person who's a फाड़ू. So you have to watch the film to actually know कि क्या क्या हो रहा है फिल्म में. The trailer actually looks really promising and it's the Cannes season as well and your 8 films have been there at Oh Cannes. la la. I How had no does idea. it feel? इस बार हाँ पिछली बार भी गया था, हालांकि वो तो वैसे ही गया था. कुल मिलाकर 8 है, लंच बॉक्स और भी बहुत सारी. हाँ बहुत सारी. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जब भी कान की बात होती है वो एक फैशन इवेंट की तरह बन जाता है, खासतौर पर हमारे मीडिया में. लेकिन इट्स अ फिल्म फेस्टिवल एंड समबडी लाइक यू टेक्स अस देयर. तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज इट ब्रिंग? फीलिंग अच्छी होती है क्योंकि वो तो एक तरह से देखा जाए तो सिनेमा का मक्का है. तो ग्रेट सिनेमा देखने को मिलता है, पहली बात तो ये है. और दूसरा जब सेलेक्ट होती है, ऑफिशियली सेलेक्ट होती है फिल्म, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है. बट कान की कोई याद? कान की बहुत सारी याद है. फर्स्ट टाइम मैं जब गया था 2013 से शुरू हुआ था मेरा जाना वहाँ पे. अच्छा. मेरी 2 फिल्में थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिस लवली. अनसर्टेन रिगार्ड में थी और ये डायरेक्टर फोर्टनाइट. फिर उसके बाद तो सिलसिला शुरू होने लगा. तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो सूट वूट सिलवा के अपने लोकल टेलर से ही सिलवा के चले गए. तो डिज़ाइनर्स ने नहीं सिया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने ठीक है कोई बात नहीं. फिर वही आके बहुत बार फिर नेक्स्ट ईयर गया, फिर वही सेम सूट लेके गया. तो 3 साल मैंने वही रिपीट किया था एक्चुअली. आई मीन हु वुड हैव थॉट कोई स्टार और ऐसा नहीं ब्लैक करेगा. में क्या फर्क पड़ता है? ब्लैक कोट है, ब्लैक टाई है, ब्लैक. एक्चुअली ये भी एक एडवांटेज है. बट मैं किसी और स्टार को ये करता हुआ इमेजिन नहीं कर सकता कि सेम सूट कान में जो है वो रिपीट हो. बट एज यू सेड कि यू आर नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, बट टू वर्क विद समवन लाइक नवाजुद्दीन हु इज NSD pass out, is it intimidating or is it learning on the set? No, I was super excited because I want to work with people like him because there's so much to learn, and honestly I missed out on the whole education because I was already thrown into it. So I felt like this is my time to pick up whatever I can, and I feel ek to hota hai when you go to college you pick up things, and then there is another thing, you learn where you are. So when I'm at work I learn a lot. So I feel like it was an opportunity which I have seized, and I think I have taken a few things from his armory of acting. And there's a song also where you say Shadi is a torture and all of that. Personally, do you also fear that thought or that's just I hope my cat? mother's not listening to this. But yeah, I feel like it's a tad bit too much in our society that, you know, this is the right time. I don't think it's ever about the time, it's about the person. So I feel like I will marry when I feel like this is the person I can spend the rest of my life with happily. So do you think we are obsessed with marriages, especially I Indians? think so. I think, yeah, I feel like they don't get the opportunity to dress up so much, I feel. So they save it for the wedding. We like to celebrate. So yeah, so if like there's 5 no other things to do, festivals- mehendi, ye, wo. They will do all of the dressing up and have a good time. You can have a good time otherwise also. I feel like it's really not mandatory to get married and have fun. But you're a matchmaker or you're arranging marriages? अरेंजिंग, events? डिसअरेंजिंग, Both. दोनों कर रहे हैं. एनीथिंग. हाँ, जोगी का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं. जोगी को अगर एक शादी की एडवाइस देनी होती तो वो क्या देता? शादी की एडवाइस, शादी रिलेटेड एडवाइस. It can be positive and negative. Anything. I mean, Jogi, I think, is sailing into both the. भाई देखो, क्योंकि उसका काम है, शादी करवाएगा, है ना. अगर और फिर शायद ये भी जाके एडवाइस दे सके अब तोड़वाना हो तो वो भी बता दो, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास. तो जोगी तो अपनी एड जो है वो करेगा. हाँ, धंधा चलना चाहिए. आप बताइए सेट एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन संजय मिश्रा है एंड समवन लाइक नेहा इज आल्सो देयर. किस तरीके का माहौल था? आपके ऊपर क्या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिंस यू आर you know a senior actor or someone who has a great line of work, तो कुछ ऐसा आपको लगता है नहीं मेरे ऊपर हाँ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये जोड़ के रखना है, मुझे उसको कंफर्टेबल, ऐसा कुछ? या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं था. हम अपना अपना काम करके आते थे के साथ. ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि भाई इनको जोड़ के रखना है, नहीं सब फ्री है भाई, क्योंकि सब प्रोफेशनल हैं. क्योंकि वही आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू, आई मीन लॉट ऑफ योर फैंस ऑल्सो वांट टू नो. This is the recent comment that you made on mental health, जिसमें आपने कहा कि it's a very urban issue.
तो इज इट, आप वही कहना चाहते थे या फिर इज देयर एन एक्सप्लेनेशन टू इट? नहीं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, शहर में जाके मेरी जो चीज़ है वो गलत हो जाए साबित, बट मेरा ये था कि भाई मैं अगर कल को अभी भी अपने गांव में जाके, यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे मेरा गांव, मैं जाके बोलूँ कि भाई मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा। और क्या होता है डिप्रेशन? खाना खा अच्छे से और जंगल में जा खेत छोल कर गन्नों की, तो यही होता है। पर क्या इसकी वजह ये है कि और वहाँ ये पता नहीं है इसके बारे में, या आप कह रहे हैं होता ही नहीं है? नहीं, होता ही नहीं है, किसी को होता ही नहीं है वहाँ पे। कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं वहाँ पे। फैक्ट है, आप जाके देख लीजिए, किसी को नहीं होता है। ये क्या होता है ना, ग्लोरीफाइड, क्या शहरों में आके अपने छोटे छोटे इमोशन को ना हम ग्लोरीफाइड करने लगते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है उसके बावजूद भी हमें बीमारियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद से ज़्यादा कुछ थिंकिंग ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया अपने आप को। तो आप बोल रहे हैं एग्जैजरेशन, आई मीन हाँ, ग्लोरीफाइड करना अपने इमोशन को। ओ माय गॉड, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे सबके साथ होता है। उनका देखो ना, जो फुटपाथ पे बैठ के भी बारिश में डांस कर रहे हैं, उनको तो होता नहीं है डिप्रेशन, आपको क्यों हो रहा है? और देख, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि जैसे बहुत सारे एनजीओ है जो गांव में भी काम करते हैं और इस फील्ड में काम करते हैं, दे एड्रेस की ऐसे इश्यूज हैं, प्रोबेबली उसका नाम वो नहीं है, उसको मे बी जी घबराना कहते हैं हम, बट दैट माइट बी एंजाइटी इन रूरल एरिया। No, I agree. I mean, I don't know. अभी नवाज का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, बट आई फील लाइक वहाँ डायग्नोसिस नहीं है ना चीज़ों की. लाइक यू फील लाइक यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट. बहुत कमरे से बहुत लोग निकलते ही नहीं है, सोते रहते हैं. ऐसी मैंने सुनी है स्टोरीज वेयर पीपल आर इन बेड एंड देन दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग. अब ये वो जो गन्ने के खेत पे काटने जा रहे हैं, ही इज अ हैप्पी मैन क्योंकि ही इज गोइंग आउट एंड डूइंग थिंग्स. बट आई एम फीलिंग जो घर पे बैठे हैं और कुछ नहीं करते, लाइफ से थक गए फॉर व्हाटएवर रीजन इट माइट बी, आई थिंक दे नीड हेल्प. जुगाड़ की बात करते हैं, मूवी में बहुत सारा जुगाड़ है. कोई जुगाड़ आपने अपनी जिंदगी में किया हो? यार मुझसे ज्यादा जुगाड़ इन्होंने किया है. इनके सारे जुगाड़ मैं सुनती रहती हूँ. और जब आपकी हम लाइफ जर्नी की भी बात करते हैं कि इतने सारे आपने जैसे अलग अलग इंटरव्यूज में स्ट्रगल्स की बात की है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा वाला भी ओपिनियन उनके दिमाग में चला जाता है कि हाँ, अगर ये स्ट्रगल्स जिए तो एक हम भी नवाज जैसा बन सकते हैं. एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको लगता है खड़ी हो जाती है बिकॉज आपने इतने काम किए हैं, यू नो, यू वर्कड एज अ सिक्योरिटी गार्ड एज वेल एंड नाउ यू आर अ बिग एक्टर. आपको लगता है कि वो एक्टर के लिए एक बडिंग एक्टर के लिए इंस्पायरिंग है, या फिर उसके साथ साथ ज़रूरी है जो जिस तरीके मैंने जो काम किए वो तो लोगों को मालूम है, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने ट्रेनिंग ली है, या जिन लोगों के बीच में रहा हूँ, कभी कोई उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि शायद अगर वो मेरी लाइफ में ना होते तो मैं स्टेज पे ना पहुँच पाता. क्योंकि थैंक गॉड मैं जानबूझ के डेलिबरेटली ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ, या इत्तेफाक रहा या मेरा एफर्ट रहा कि जो हर वक्त सिनेमा के बारे में बात करते हैं या थिएटर के दौरान थिएटर के बारे में बात करते थे. तो ऐसे लोगों के बीच, थैंक गॉड मैं ऐसे काबिल लोगों के बीच में रहा हूँ. तो मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे आसपास के दोस्त, मेरा सर्किल ऐसे लोगों का था. उसकी वजह से मैं जो भी कुछ हुआ उन लोगों की वजह से हुआ. राइट. जैसे आपने इरफान खान साहब के साथ भी काम किया है, उनके साथ कोई आपकी याद, बिकॉज वो भी एनएसडी पास आउट, आप भी एनएसडी पास आउट, काम आपने साथ में किया है, एनी स्पेशल मेमोरी यू होल्ड विद हिम? बहुत सारी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम रहा, और जब भी वो किसी रोल की, किसी हॉलीवुड के कैरेक्टर की तैयारी करते थे तो मुझे ज़रूर बुला लेते थे, तो मैं उनका को एक्टर हो जाता था. एक इंसिडेंट याद है मुझे, जब हम सन एंड सैंड एक होटल है मुंबई में, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन किया उन्होंने सुबह 5 बजे के आसपास, क्योंकि उनको पता है मैं सुबह जाग जाता था. तो बोले सन एंड सैंड चलना है. हमने क्यों? बस चलते चलते एक वो कोई डैनी बॉयल करके डायरेक्टर है, उससे मिलते हैं. मुझे पता नहीं कौन था. तो हम गाड़ी में बैठ के सीधे सन एंड, हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया हुआ था, हम सीधे पहुँचे वहाँ पे और कॉरिडोर में वेट कर रहे थे. कॉफ़ी 3-4 कॉफ़ी हो गई, बातें करते रहे. तो पता चला कि वो थोड़ा रेत पे इधर पीछे सी है, तो वहाँ पे थोड़ा रनिंग वनिंग करने के लिए गया हुआ है, तो जैसे आएगा पकड़ लेंगे हम उसको. ऐसा हमारा प्लान था. अच्छा. वाओ. तो डैनी बॉयल आए, उनके साथ 1-2 बंदे और थे, जो उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी वो भी थी उनके साथ. सुबह के टाइम जैसे अपने वो रूम पे गए, तो वहीं पकड़ लिया हमने उनको. पहले इरफान भाई गए तो मैं किया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इरफान खान, ये 2-4 फिल्में भी की थी उन्होंने बाहर की, तो पहचान गए उनको. तो फिर बात हुई कि ठीक है मिलते हैं फिर दोबारा. फिर नीचे आए वो, मुझे बोला तू चला जा. तो मैं भी गया कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब इंट्रोडक्शन दिया. तो बोले तुमसे भी मिलते हैं. ठीक है.
तो आ गए मिलके, हो गया था जुगाड़ अपना। Wow. तो ये एक मेमोरी बहुत अच्छी मुझे याद है। Yeah, that's I mean, also doing lines with Irfan and, you know, meeting Danny Boyle. I mean, these are stories for... yeah. True. And इस वक्त हम ये दिल्ली में कर रहे हैं इंटरव्यू, आपको दिल्ली बढ़िया लग रहा है? You've studied I acting love here. Delhi, yaar. Every time I come here, I'm like always in two minds after that. Ki, yaar, do I really want to live there? But the work's there, so of course. आप दिल्ली को किस तरह देखते हैं? दिल्ली में रहा हूँ यार काफ़ी साल, 8 साल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और हमेशा ये लगता है कि थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं थोड़ा जाऊँ उन जगहों पे जहाँ पे खाना खाता था मैं, है ना, अपने NSD जाऊँ, तो इस तरह जा पा रहे हैं लेकिन नहीं, टाइम ही नहीं मिल पा टाइम ही नहीं मिल पाता. Okay, just to wrap this conversation, we have one last segment which is called Quickie. I'll say some words. आपके जहन में जो भी कोई एक word या line उसे सुनकर आती है वो आप कह सकते हैं. दोनों के लिए सेम ही शब्द होगा. It's called Quickie. So you say whatever comes to your mind first. Indian award functions. इंडियन अवार्ड फंक्शन, It can be a word, a line, whatever. जुगाड़. यार बोल दिया अब इन्होंने. इससे बेटर मैं क्या बोलूं? You don't want to go with Fard? No, of course not. Not for this. Okay. Yeah, Jugaad it is. Jugaad it is. Okay, Cannes Film Festival. आई थिंक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल. How do you see it? Of course prestigious and but I feel उसमें भी जुगाड़ चलता है कभी-कभी. चल जाता है कुछ लोगों का. ऐसा सुना है मैंने. अच्छा, थोड़ी डिटेल्स दे दीजिए प्लीज. मैं इंटरव्यू के बाद comments. पूछूंगा आपसे, कहा किसने बोला है जुगाड़, बताना मुझे. Biopics. हैं? Biopics. बायोपिक, मिमिक्री. Biopics. If made well, it could be something. Box office collection. भाई मेरा काम नहीं है ये, फाइनेंसर और प्रोड्यूसर उनके. ये एक सच्चा आर्टिस्ट बोलेंगे, मेरा काम नहीं है ये. True. Box office collection. Yeah, if it were good, it's great. If it's not so good, you feel disappointed. I'm not going to say it doesn't matter. Social media. हॉरेबल भी हो सकता है ना, कभी कभी, और अच्छी चीज़ भी है. Social media. Agreed. It's got its pros and cons. OTT. OTT. And I say OTT, I mean the OTT platforms. हाँ, डूइंग गुड. नए एक्टर्स आ रहे हैं. OTT Neha. I think a great opportunity for a lot of people who didn't get to showcase their talent because I felt box office becomes a very important thing. So if your film doesn't do numbers, you might not get the kind of roles you expect in life. And OTT, sometimes you can crack a good one, I feel. Yeah. Now on the lines of the film Shadi. हाँ, Shadi. शादी जनरली. I mean film related भी आप जोगीरा सारा रारा में तो बात ही उसके बारे में हो रही है. इनका यार डायलॉग. हाँ हाँ, वो क्या डायलॉग? टॉर्चर वाला. नहीं वो आप बोलो. मुझे लगता है कि शादी can again be both things, right? If you find the right person, it can be happily ever after. And if it's the wrong person, then it can be torture, like Which we've seen in the promo. Yeah. Which we've seen in the promo. But once again, congratulations on how the trailers look, and we're absolutely excited to see this. Thank so you very for much. having us. So lovely chatting with you. For NDTV, Arun Singh signing off.